Fox and Pins is Patna's first bowling alley. It opened just 2 months ago. It's a huge rage, and I caught up with a whole bunch of young and restless Biharis to understand from them who they wanted to steer Bihar into the future. The folks who set up Fox and Pins said that they're working in Bengaluru before this, and they used to travel every weekend, party every Saturday, Sunday, but when they came back to Patna, they found that there was absolutely nothing to do in the city. They decided to try and change that. While pool tables, air hockey and bowling alleys are really no big deal in any other big city across the country, they're still a huge novelty here in Patna. We're at Fox and Pins, Patna's first bowling alley fast food center. We've got a whole bunch of people who represent, in some senses, the urban youth of Bihar. Let's try and understand which way the winds are blowing or the pins are blowing on the bowling alleys of Patna. Okay, let's start with you. Tell us, in this big election, the first phase of polling is over. आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? आप किसको जिताना चाहते हो? क्यों? मैं तो नीतीश कुमार को ही जिताना चाहता हूँ। मैंने देखा है पिछले 10 साल में पटना कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ऐसी जगह आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। हो सकता है नरेंद्र मोदी आ जाए तो इससे भी बड़ा कुछ कर दे। बट जब हमारे पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, वाई गो विद द अदर वे। अच्छा, आप बताएं, काफी चहल पहल है इस बॉलिंग एली में, लेकिन आपके हिसाब से इस वक्त इलेक्शंस में दमदार कैंडिडेट कौन है? बीजेपी के लोग हैं और हमको लगता है कि बीजेपी इज गोइंग टू कम बैक इन पावर एंड आई थिंक दैट विल बी रियली ग्रेट। क्यों आपको ये लग रहा है? लोगों को लग रहा है कि नीतीश ने 10 साल में काफी काम किया। See, I was working outside. I came back to Patna. I'm a fashion designer, and honestly, like from 4 years, I'm in Patna, and I think like most of the claims what they make is only on the papers. Because you just go on the streets of Bihar, you will find it. There's no industry here. As a designer, I need my tailors, I need my industry here, and we have nothing here. So definitely, I miss on it, and I want to make my career in Bihar. I left my career elsewhere. I came back to Bihar, and I want to do something great here. So I think that I need a person who can give us Bijli Pani Sadak and maybe Karobar. You think Narendra Modi is the person to do that? I think so. I mean, he's on a bigger front. He's on a national front. But whoever is going to come in a power, hopefully BJP, and their people have to perform. Otherwise, it's very, very difficult for any of the parties. Let's speak to some of the young ladies who are at the bowling alley. Tell us, आपके हिसाब से इस इलेक्शन में फेवरेट कौन है? आप किसको पसंद करते हैं? मोदी। मोदी को क्यों? क्योंकि वो किसी अलायंस को सपोर्ट नहीं करते एंड आज तक उन्होंने जो भी काम किया है वो सबके सामने जाहिर है। उन्होंने बखूबी काम किया है और सिर्फ वादों के बहाने आते नहीं है वोट्स में। सो आई सपोर्ट नरेंद्र। आप किसको पसंद करती हैं और क्यों? नीतीश को करते हैं क्योंकि वो अभी 10 साल से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने पिछले 10 साल में किया जो आपको अच्छा लगा? एक्चुअली पहले यहाँ की लड़कियाँ रात में नहीं निकल पाती थी, लेकिन आजकल मतलब कि ऐसा कोई डर नहीं रहता है, आराम से लोग रात में भी घूम करके आ सकते हैं। लेट्स स्पीक टू द जेंटलमैन हु इज एसोसिएटेड विद मैनेजिंग द बॉलिंग एली। बताएं, काफी यहाँ पे रौनक है आप लोगों की बॉलिंग एली में, लेकिन आपके हिसाब से जीतेगा कौन ये इलेक्शन? सर, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि जब नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम आए थे तो बहुत सारी उम्मीदें जगी थी और बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। तो पर्सनली आई थिंक इस बार भी अगर नीतीश कुमार आते हैं देन थिंग्स विल बी अ लिटिल इजियर। मोदी कहते हैं अगर स्टेट में और सेंटर में सेम गवर्नमेंट हो तो ज्यादा फायदा होगा। सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। सेंटर में मोदी हैं, बीजेपी इज डूइंग गुड जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। मोदी इज अ यूनिक फेस और बहुत प्रचलित हैं, अच्छे काम किया है। बट ऐसा नहीं है, जब सेंट्रल में भी इलेक्शंस थे तो मोदी जी यहाँ पे आए थे और बहुत अच्छा बोले थे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा फॉर अस बिहारीज। बट पर्सनली नीतीश जी आए थे फर्स्ट टाइम तो अच्छा हुआ था। दैट्स द ओनली रीजन। हम लोगों को उम्मीदें हैं इस बार भी। लेट्स ट्राई एंड गेट सम मोर वॉइसेस। बताएं, आप बॉलिंग तो काफी कर रहे हैं, आप वोट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट बिकॉज हिज थिंकिंग इज टू फार फ्रॉम द कास्टेज मैन अदर थिंग्स। एंड लगता है 16 महीने में काम किया उन्होंने? बहुत ज्यादा काम क्या किया उन्होंने? द बेस्ट इज डन। वो बेस्ट अभी तैयार कर रहे हैं जो 50 साल में नहीं हुआ, वो 16 महीना में आप इतना जल्दी फास्ट रिजल्ट कोई कैसे दे सकता है? 50 साल में जो बिगड़ा हुआ उसको धीरे धीरे वो सही करते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि वो 16 नहीं कम से कम 5 साल तो दे ही दिए हम लोग। 5 साल में जरूर कुछ ऐसा कर देंगे कि अगला बार
ना हिंदू मुसलमान सब जात उनको वोट देगा। Let's speak to some of the people who are not playing, sitting around at the back. आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? ऑब्वियसली नीतीश जी को। Obviously क्यों? क्योंकि व्हेन ही रूल, जब वो सीएम थे तो हमने नोटिस किया कि बिहार में काफी डेवलपमेंट हुई। क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट इन सड़कें जाम रहती हैं, नहीं, गंदगी है। सड़कें कम से कम बनी तो, और लाइक कि उस समय पहले होता था कि किडनैपिंग बहुत होते थे, बट अब नहीं होते, मतलब होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। दैट टाइम होता था 7 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज हम एंजॉय करते हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं इस वजह से। बताइए आप किसको वोट देंगे? जी मैं भी नीतीश को ही प्रेफर करूंगा। हाँ बिल्कुल। क्यों नीतीश को वोट देंगे? जैसे इन्होंने कहा वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी ये है, जो लालू की या फिर किसी और की सरकार में नहीं थी वो। पर अगर लालू जी आ गए तो हो सकता है कि बैकडोर से जंगल राज फिर से आ जाए, सवाल पाएंगे नहीं। लेकिन अभी अकेले तो नहीं है लालू जी। अभी हमारे पास जो महागठबंधन है इसमें एक सपोर्ट उसका भी है, सब तीनों मिलकर चल रहे हैं। तो अभी उन्होंने तीनों ने नीतीश को एक प्रेफर मेन आई है। ऐसा नहीं है कि और कोई पार्टी नहीं है, जैसे बीजेपी की बात है। अगर खुद मोदी जी करते हैं, अगर खुद मोदी जी सरकार यहाँ चलाएंगे तो आई विल प्रेफर देम, बट यहाँ तो वो है नहीं, उनके लोग भी ऐसा कोई है नहीं। इसलिए अगर ऑप्शन में देखा जाए और सही बात है तो नीतीश को ही मैं प्रेफर करूंगा। नीतीश को प्रेफर करेंगे। सो इट सीम्स दैट पीपल आर डिवाइडेड, split between Nitish and Narendra Modi. No easy answers. Remember, several of the assembly elections in the past few years have been one-sided affairs, won by whichever party won them with a huge majority. But this one seems to be going down to the wire. मैं तो सोच रहा हूँ इस बार वोट देने को नीतीश कुमार को। क्यों देंगे नीतीश कुमार? क्योंकि पिछले ईयर का जो इलेक्शन हुई थी और इस ईयर में तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस मेरे को दिख रहा है। पहले तो घर से लोग निकलते भी नहीं थे, 7-8 बजे के बाद डरते हैं, ये है वो है। और इस बार तो मुझे लगता है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, इतना सेफली हूँ, मेरे को कोई टेंशन भी नहीं लग रही है। That's just a cross-section of young voices from Patna. Remember, this is urban Bihar. Rural Bihar is very different. But the BJP would have expected that Narendra Modi will rule urban Bihar. From the voices we've heard, it's clear the Prime Minister enjoys popularity, but the Chief Minister doesn't lag far behind. An equal number of voices leaning towards the BJP and towards the Nitish alliance. Remember, it's not Lalu, but it's Nitish who holds sway amongst these young people. People who believe that Nitish Kumar can help them work towards a brighter, more prosperous Bihar.